وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ کیا تجھے وہ روشنی نظر آ رہی ہے اے نثار؟ میں نے دھیمی آواز میں نخار کو مخاطب کیا۔ ہاں، وہ ابھی آہستہ آواز میں بولا۔ اسی طرف سے کسی گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز بھی آئی تھی، آتون، اور ہم شاید ان کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہم کچھ اوپر ہی چڑھے ہوں گے کہ روشنی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ پر اسرار روشنی یقیناً کسی مشعل کی نہیں تھی، ورنہ یوں اوجھل نہ ہو جاتی۔ روشنی غائب ہو گئی اور اسی وقت میری نگاہ بائیں جانب اٹھی اور مجھے اس طرف کا ایک غار کا دہانہ نظر آیا اور وہیں مجھے 3 گھوڑے بندھے ہوئے دکھائی دیے۔ تم دونوں اپنی منزل تک پہنچ چکے ہو۔ کجیرہ کی سرگوشی ابھری اور پھر اس کی خوشبو آنا بند ہو گئی۔ میں اور نثار دبے قدموں غار کے دہانے کی طرف بڑھے۔ اب تو سو جا، میں جاگ رہا ہوں۔ غار کے دہانے کی طرف سے ایک آواز آئی تو میں ٹھٹک کر رک گئی اور نثار کو میں نے رکتے ہوئے دیکھا۔ لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری آواز ابھری۔ یہاں کون آ سکتا ہے؟ لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ تجھے شاید بڑے سحر کی تاکید یاد نہیں، پہلی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا تھا کہ رات ہو جائے تو کوئی نہ کوئی ضرور جاگتا رہے۔ وہ دونوں کچھ دیر تک اسی طرح بحث کرتے رہے اور پھر دوسرے نے پہلے کو سو جانے پر آمادہ کر لیا۔ ان کا تیسرا ساتھی شاید سو رہا تھا۔ غار کا دہانہ ہم سے چند ہی قدم پر تھا۔ محتاط انداز میں بڑھتے ہوئے ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ اندر سے ان کے کھراٹے سنائی دے رہے تھے۔ ہم خاصی دیر تک باہر رکے رہنے کے بعد آگے بڑھے تاکہ وہ دونوں جو کچھ دیر پہلے جاگ رہے تھے سو جائیں۔ جب ہم غار میں داخل ہوئے تو ان تینوں کو بے خبر سوتے ہوئے پایا۔ ان کے سرہانے ہمیں رائفلیں بھی رکھی ہوئی نظر آئیں۔ نثار نے آہستگی سے آگے بڑھ کر یکے بعد دیگرے تینوں رائفلیں اٹھا لی اور مجھے دے دی۔ غار کے اندر تاریکی ہی تھی، مگر جدھر بھی میری نگاہ اٹھتی ادھر سے تاریکی چھٹ جاتی، اور یہ تجربہ میرے لیے بڑا انوکھا، عجیب اور حیرت ناک ہی تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری نظریں اندھیرے میں شگاف ڈال رہی ہوں۔ نثار کو میں نے دائیں شانے سے رسی کا گلچھا اتارتے ہوئے دیکھا جو حویلی سے کچھ فاصلے پر لے کر چلا تھا۔ اس کے بائیں شانے سے رائفل لٹک رہی تھی۔ اس نے تیزی کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے رسے میں 3 پھندے بنائے اور جھک کر وہ تینوں پھندے ان 3 افراد کے پیروں میں ڈال دیے جو قریب ہی سوئے ہوئے تھے، اور پھر نثار نے رسی کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ پھندے ان تینوں کے پیروں میں کس گئے اور وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کوئی ہے، غار میں کوئی ہے، ایک شخص کی خوف زدہ سی آواز ابھری، اور اس نے ہمیں باندھ لیا ہے۔ دوسری ڈری ڈری سی آواز ہوئی۔ تیسرا شخص شاید کچھ زیادہ ہی گاگ تھا۔ اس کا ہاتھ سرانے کی طرف بڑھا جہاں سے نثار نے اس کی رائفل اٹھائی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا اور پھر وہ بول اٹھا، رائفل، میری رائفل بھی غائب ہے۔ اور پھر بقیہ دونوں کو بھی اپنی رائفلوں کا خیال آیا۔ انہوں نے بھی یہی کوشش کی اور ناکام رہے۔ سنو، نثار نے انہیں مخاطب کیا، تم باندھے جا چکے ہو اور تمہارے ہتھیار ہمارے قبضے میں ہیں۔ کون ہو تم؟ کون ہو لوگ تم؟ ایک شخص نے اس طرف دیکھتے ہوئے کہا جدھر نثار کھڑا تھا، اور اس نے یقیناً نثار کی آواز ہی کا سمت کا اندازہ کیا تھا۔ اس شخص کے چہرے سے عیاری ظاہر ہو رہی تھی۔ میرا نام نثار ہے، مگر تو مجھے اپنی موت بھی کہہ سکتا ہے۔ نثار اس شخص کے سوال کا جواب دیا۔ عظیم سردار عاشر کا بہادر بیٹا نثار۔ اس عیار شخص کے لہجے میں چاپلوسی تھی۔ مگر اعظم نے تو مجھے کچھ اور ہی کہا تھا۔ کیا کہا تھا تجھ سے اعظم نے؟ نثار نے پوچھا۔ تو مجھے خاصا باخبر معلوم ہوتا ہے، نثار کی آواز میں چبھن تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہوگی اور کل صبح یہاں خود آتون کو لے آئے گا۔ اعظم نے تیرے دشمن سیان سے آتون کا سودا کر لیا، اور وہ عیار شخص نثار کو باتوں میں لگا کر اپنے پیروں کا پھندا کھولنے کی ناکام کوشش کیے جا رہا تھا۔
मगर जिंदगी की तो एक ये आखिरी रात नहीं, मगर ए बूढ़े साहर ज़ईम के अय्यार खिदमतगार, तू शायद कल का सूरज ना देख सके। नसार ये कहता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और रस्सी का लच्छा मुझे समा दिया। नहीं ए नसार, हमारा ज़ईम से कोई तलक नहीं। ये कहकर वो शख्स फिर अपने पैरों में पड़ा हुआ फंदा खोलने में उलझ गया। नसार फिर कुछ नहीं बोला और मैंने उसे शाने से राइफल उतारते देखा जिसे वो नाल की तरफ से पकड़े हुए था। नसार ने बारी बारी उन तीनों के सरों को निशाना बनाया और फिर उनके बेहोश जिस्मों को उन्हीं के घोड़ों की पूंछ से बांध दिया गया। घोड़ों की लगामें थामे हम पहाड़ी से उतर आए। उन घोड़ों की लगामें एक रस्सी से बांधकर नसार ने हाथ में ले ली और अपने घोड़े को खोला। उन तीनों की राइफलों को मैंने अपने घोड़े के पहलू से बांध दिया और मैं और नसार तकरीबन एक साथ ही अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए। वापसी का सफर उसी रास्ते से हुआ जहां हमें मछलियां मुतहरक नजर आई थीं। अब भी दूर दूर तक पहाड़ों में वही समा था जो मैंने पहले देखा था। हम उस पहाड़ी सिलसिले से निकल ही रहे थे कि हमें घेर लिया गया। वो मसला मशल बरादर कबीत वाले ही थे। आतून देवी कोई हैरत ज़दा सी आवाज में चीखा और फिर वो सभी मेरी ताज़ीम में झुक गए। अपने सरदार बरीसा से कह देना कि मुश्तबा अफराद को आतून देवी बांध कर ले गई है, वो देखो। मैंने उन घोड़ों की तरफ इशारा किया जो नसार के साथ थे और फिर मैंने अपने घोड़े को एड़ लगा दी। उस पहाड़ी सिलसिले में उन तीन अफराद को तलाश कर लेना ऐसा ही था जैसे सहरा में सुई की तलाश। उन तीनों को उस गार में भी मौत की नींद सुलाया जा सकता था। उन्हें बांध कर साथ लाने की जरूरत नहीं थी, मगर नसार ने ऐसा नहीं किया था। उस पर मैंने भी उसे नहीं टोका। उस तरह शायद वो अहरस के तर्ज का जवाब देना चाहता था और मेरा अंदाजा ये था कि हमें वापसी में खासी देर हो गई है, मगर ये अंदाजा गलत साबित हुआ। अहरस वाकई हमारे इंतजार में जाग रहा था और उसने अब तक खाना नहीं खाया और मेरे लिए ये बात भी हैरान कुन थी कि अभी तक एक पहर नहीं गुजरा था। ऐ मेरे भाई अहरस, तूने देख लिया कि हम कई दिन वहां गुजारे बगैर मुकर्रर वक्त के अंदर वापस आ गए। नसार ने मुस्कुराकर अहरस को मुखातब किया जो हम दोनों के साथ हो लिया था। यूं तो ऐ नसार, मैं भी कहीं जाकर खाली हाथ लौट सकता हूँ। अहरस भला कब हार मानने वाला था। बस जाना और आना ही तो है। तू एक पहर में वहां जाकर पलटा है, मैं निस्फ पहर में वहां होके आ सकता हूँ। पूछ कैसे? वो कैसे अहरस? नसार हैरत से बोला। हाँ बता। तुझसे यही कहकर जाऊंगा कि पहाड़ी सिलसिले की तरफ जा रहा हूँ और चश्मे के किनारे कुछ देर टहल कर वापस आ जाऊंगा। अहरस ये कहकर हंस दिया। तेरी ही तसल्ली के लिए मेरे भाई अहरस, मैं इन तीनों मुश्तबा अफराद को अपने साथ बांध कर लाया हूँ, वरना उन्हें वहीं ठिकाने लगा आता। अहरस बेयकीनी से अंदाज में नसार की तरफ देखने लगा और मेरा ये ख्याल दुरुस्त ही निकला कि अहरस ही की खातर नसार ने इतनी जहमत उठाई थी और फिर हमने साथ ही खाना खाया। उसके बाद अहरस को बेइसरार नसार अपने साथ ले गया और नसार के हुक्म पर उन तीनों खिदमतगारों के सर कलम किए जाने वाले थे और ये मंजर नसार अहरस को भी दिखाना चाहता था। नसार तो अहरस को लेकर चला गया और मैं अपने कमरे में आ गई। मालूम नहीं क्यों इस वक्त मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी और मैं इसके बावजूद सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। मुझे एहसास था कि सुबह फिर एक तवील सफर दरपेश है। मुझे और नसार को अव्वल के साथ रवाना होना था। देर तक करवटें बदलने के बाद जब मुझे नींद ना आई तो मैं उठकर कमरे में टहलने लगी। बेचैनी का सबब अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सका। टहलते टहलते थक कर मैं लेटी ही थी कि राहदारी में किसी के कदमों की तेज आवाज गूंजी, जैसे कोई दूर से दौड़ता आ रहा हो। आने वाला एक खादम था। उसने आकर बताया कि अचानक महापुजारी की तबीयत खराब हो गई और मैं फौरन लपकती हुई उसके कमरे तक पहुंची। अब मैं अपनी बेचैनी की वजह जान चुकी थी। वो मुझे सख्त अजियत का शिकार मालूम हुआ। उसका सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। क्या हुआ ऐ महापुजारी? मैं उसके करीब ही बैठ गई। उसने आंखें खोलकर एक बार फिर मुझे देखा और फिर दोबारा पलकें झुक गईं। उसी वक्त एक खादम हवेली के तबीब को अपने साथ लेकर आया और मैं पीछे हट गई और तबीब महापुजारी का मुआयना करने लगा। उसी वक्त महापुजारी का हाथ मैंने सीने की बाएं जानब उठते देखा और उसी दौरान में एक खादम से मुझे मालूम हुआ कि महापुजारी ने आवाज देकर बुलाया था और फिर सीना थाम कर लेट गया। वो खादम से कुछ कह नहीं सका था। तबीब ने कोई मशरूब महापुजारी के होंठों पर टिपकाया और फिर मुंह खोलने की कोशिश करने लगा,
बमुश्किल वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ। उस मशरूब के चम कतरे मुंह में चले गए। ऐ तबीब, इसे क्या हो गया? मैंने भारी आवाज में तबीब से पूछा। इसकी बाई पिछलियों के नीचे कुछ तकलीफ मालूम होती है, तबीब ने जवाब दिया। कोई खतरे की बात तो नहीं? मैं बड़ी मुश्किल से ये सवाल कर सकी। आज शाम तक तो ये बिल्कुल ठीक था। ए आतून, अभी मैं आत्मी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। और ये कहते ही उसने झुक कर सीने पर अपना एक कान रख दिया और फिर सीधा होकर मैनिखेत अंदाज में सर हिलाने लगा। अपनी दवाओं की संदूकची उसने दोबारा खोल ली थी। तबीब ने गालबन किसी और दवा के कुछ कतरे महापुजारी के मुंह में डाले और उसी वक्त महापुजारी के जिस्म को झटका सा लगा। दवा काम कर गई। तबीब के चेहरे पर रौनक नजर आने लगी और चंद ही लम्हे बाद महापुजारी ने आंखें खोल दी। तबीब ने फौरन ही वो पहला मशरूब उसे पिला दिया जो गालबन बेहोशी के दौरान पिलाने की कोशिश कर रहा था। उसके कहने पर खुद महापुजारी ने मुंह खोल दिया था और उसी वक्त अहरस और नसार भी वहां पहुंच गए। वो दोनों भी तबीब से महापुजारी की कैफियत दरियाफ्त करने लगे। उसे आराम और निगाहदाश्त की जरूरत है, ऐ सरदार, उसे अकेला ना छोड़ा जाए, तबीब ने कहा। और मैंने महसूस किया जैसे महापुजारी कुछ कहना चाहता है और मैं उस लिए झुक कर उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। वो कह रहा था, ऐ मेरी बच्ची, तू फिक्रमंद ना हो, अभी देवताओं की तरफ से मेरा बुलावा नहीं आया। बराबर वाला कमरा अहरस का था। वो महापुजारी के कमरे में मुंतकिल हो गया। हर चंद के तबीब ने मुतमिन कर दिया था। अब महापुजारी की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। फिर भी मुझे बेचैनी सी रही और रात को कई बार मेरी आंख खुली। दूसरी सुबह नाश्ते करने से पहले महापुजारी को देखने चली गई। वो अब इस वक्त तक सोकर नहीं उठा था और ये दवाओं का असर था। अहरस जाग चुका था। क्या हाल है अब उसका? मैंने अहरस से दरियाफ्त किया। तबीब कह गया है कि जब तक ये सोए इसे सोने दिया जाए और मैंने इसीलिए उसे नहीं जगाया। तेरे आने से जरा पहले ही तबीब उसे देख कर गया है। ठीक है, तो फिर सोने दे इसे, मैं ये कहकर मुड़ी। आतून, क्या तू मुझे महापुजारी को इस हालत में छोड़कर नसार के साथ चली जाएगी? नहीं अहरस, ये कैसे मुमकिन है? आतून, तुझसे मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। नसार को जाने दे, वो भी अब नहीं जाएगा। अहरस, मैं ये कह कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दूसरे दिन महापुजारी की हालत खासी संभल गई। कुछ देर तक हम उसके पास मजीद बैठकर उठाए। और तेरा क्या ख्याल है आतून कि हम अव्वल को चला ही जाने दें? अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए नसार ने मुझसे कहा और मैं चौंक कर आहिस्ता से बोली, तो फिर हम उसके बाद भी तो यहाँ से रवाना हो सकते हैं। नसार का लहजा मैनिखेत था। वो अब अपने कमरे के दरवाजे तक पहुँच चुका था और मैं उसकी बात का मतलब समझ गई कि अब वो यहीं से बराह रास्त बूढ़े साहर ज़ईम की तरफ जाने का इरादा कर रहा था। और मैं उसके साथ साथ कमरे में दाखिल हो गई और बोली, हाँ, ये भी मुमकिन है कि ऐ नसार, मगर तेरा मुहाफ़िज़ दस्ता मैं तुझे बता चुकी हूँ कि सिर्फ तू ही मेरे साथ चलेगा। मुझे याद है आतून, उसने कहा और बैठ गया। आप बैठ के मैं तुझे बताऊँ वो जो मैंने सोचा है। और मैं उसके पास बैठ गई तो वो कहने लगा, इस मामले में सिर्फ एक शख्स को एतमाद में लेना पड़ेगा और वह मेरा नायब अहज़म है। मगर ऐ नसार, क्या तू राजदारी की शर्त भूल गया? किसी को कुछ नहीं बताना हमें कहाँ और किस लिए जाना है। मैंने उसे याद दिलाया। एतमाद में लेने का मतलब किसी को राजदार बनना तो नहीं है आतून। आज़म को यह मालूम नहीं होगा कि मैं कहाँ जा रहे हैं और किस लिए। बोल, क्या इस तरह राजदारी की शर्त पूरी नहीं हो जाती? यूं ऐ नसार, तो फिर ठीक है। मैंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। तू अव्वल को जाने दे और हम बहरहाल उसी वक्त यहाँ से चलेंगे जब तबीब महापुजारी की तरफ से पूरी तरह मुतमिन हो जाएगा। तो फिर मैं आज ही अव्वल से कह देता हूँ आतून कि वह अपनी बस्ती की तरफ लौट जाए। और फिर जो कुछ नसार उसने इस अरसे में सोचा था बताने लगा। रात का आखिरी पहर था कि मैं और नसार हवेली के अकबी दरवाजे से बाहर निकले। हमें रुखसत करने वाला सिर्फ आज़म था। मुहावजों को वहाँ से पहले ही हटा दिया गया और खुद आज़म को भी मालूम नहीं था कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं, ना कि ये हमारी वापसी कब होगी। नसार के जिस्म पर मामूली लिबास था। उस लिबास में वो किसी पहाड़ी बस्ती का कोई गरीब और बेहकीकत बाशिंदा लग रहा था और मैंने भी ऐसा ही लिबास ज़ेबे तन किया था, मगर वो भी मर्दाना लिबास ही था। हम दोनों बहरहाल उन बस्तियों से गुजरने वाले थे जिन पर हमारे दुश्मन की हुक्मरानी थी। वादी सबज़ के शमाल में निसफ पहर की मुसाफत पर जो पहाड़ थे, उन बस्तियों से गुजरे बगैर वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था।
उन पहाड़ों के गिर्द गिर्द कई छोटे मोटे कबीले आबाद थे और उन्हीं में से एक पहाड़ बूढ़े साहर ज़ईम का मस्कन था। नसार उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था। महापुजारी को गुज़श्ता रोज़ ही तबीब ने चलने फिरने की इजाज़त दे दी और वो अब महापुजारी की तरफ से मुतमिन था। हमने तभी रवानगी का फैसला कर लिया। आहरस और महापुजारी को यही मालूम था कि हम किसी भी वक्त अव्वल की बस्ती के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके सिवा किसी और को ये इल्म भी नहीं था कि हम कब और कहाँ के लिए रवाना होंगे। सिर्फ आज़म को खबर थी कि रात के आखिरी पहर हमारी रवानगी है और सुबह के आसार नमूदार होते होते हम आशिर की बस्ती से काफ़ी दूर निकल आए और हमने अपने घोड़ों की रफ्तार एतदाल पर रखी कि किसी को हम पर चोरों या राहजनों का शुबा ना हो। उन पहाड़ी बस्तियों के गरीब बाशिंदों के पास अमूमन पुरानी तर्ज के मामूली हथियार ही होते हैं। अपने हुलियों की मुनासबत के पेश नज़र हमारे पास भी यही हथियार थे और नसार ही की तरह मेरी कमर से भी एक तलवार बंधी हुई थी। उस तलवार के अलावा एक खंजर था जो कमर की पेटी में उठसा हुआ था और मेरे जिस्म पर ढीला ढाला लिबास था ताकि मेरी नस्वानियत ज़ाहिर ना हो। सर के बाल उस चादर में छुपे हुए थे जो मेरी सर पर पगड़ी की तरह बंधी हुई थी। दोपहर होने से कुछ पहले ही हम दुश्मन के इलाके की हदूद में दाखिल हो चुके थे। अब ज़रा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है आतून, नसार ने मुझसे कहा, और हम खतरे में भी घिर सकते हैं। तुझे ऐसे वक्त कुछ नहीं बोलना। हाँ, मुझे तेरी हदायत याद है, मैं आहिस्ता से हंस कर बोली। हम मुहतात अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए आगे बढ़ते रहे और कुछ ही फासले पर नशीब में किसी बस्ती के आसार नजर आने लगे। हम जिस रास्ते से गुजर रहे थे उसकी एक जानब ऊंची ऊंची चट्टानें थीं और बस अचानक एक चट्टान की आड़ से निकलकर दो घुड़सवार हमारे सामने आ गए थे। उनके हाथों में राइफलें थी और जिनके रुख हमारी ही तरफ थे। रुक जाओ, उनमें से एक ने हमें हुक्म दिया और मैं अपने घोड़े की लगाम हमने खींच ली। नसार ने भी अपना घोड़ा रोक लिया और फिर एक घुड़सवार हमसे फासले पर ही खड़ा रहा और दूसरा अपने घोड़े को एड़ लगाकर हमारे करीब आ गया। ये वही था जिसने हमें रुक जाने का हुक्म दिया था। उसके लंबूतरे चेहरे पर नजर पड़ते ही ना जाने क्यों मुझे कराहत महसूस हुई। कौन हो तुम लोग? उस शख्स ने दुरुस्त आवाज में सवाल किया। मेरा नाम मरताक है और ये मेरा चचा का बेटा राफे है, नसाद ने नरमी से जवाब दिया। तू कहाँ से आ रहा है? अपनी बस्ती सनिया से। नसार ने एक बस्ती का नाम लिया जो वादी सबज के मगरब में वाक़या थी। उस शख्स ने हंकारा भरा और तेज नजरों से नसार की तरफ देखा और पूछा, और तू इधर कहाँ जा रहा है? वसीद की बस्ती जो दो पहाड़ों के दरमियान आबाद है, नसार पुरसकून आवाज में बोला। वहाँ तेरा कौन है? मेरे बाप का बड़ा भाई नासिक, नसार ने बिला झिझक जवाब दिया। उस शख्स ने अपने घोड़े का रुख मेरी तरफ फेरा और कहा, हाँ अब तू बोल। उसने अपनी राइफल की नाल से मेरी ठोड़ी पर ऊपर उठाई। ये बोल नहीं सकता, नसार ने उस शख्स को बताया, ये गूंगा है। अच्छा, तो बोलने वाला सिर्फ तू है। वो मकरूह सूरत शक्ल अचानक जोर से हंस पड़ा और फिर कहने लगा, तुझे शायद इस गुमान में है तू कि मुझे धोखा देकर आगे बढ़ जाएगा। बोल, क्या तू हमारे दुश्मन नसार की तरफ से नहीं आया? नसार से उसने ये सवाल इस तरह किया था जैसे कोई इंकशाफ किया हो और फिर उसने नसार के चेहरे पर नजरें गाड़ दी थी। नहीं, नसार ने इनकार किया। तू हमें जाने दे और हम पर दुश्मन के मुखबर होने का शुबा ना कर। अगर तू दुश्मन का मुखबर ना होता तो हरगिज़ इस रास्ते पर ना आता। चल, अब तेरा फैसला कलोज ही करेगा कि लाश सरदारों के सरदार सियान का नायब है। और फिर उस शख्स ने अपनी राइफल की नाल से हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। नसार को मजबूरन अपना घोड़ा आगे बढ़ाना पड़ा और मैंने भी उसकी तकलीद में ऐसा ही किया। वो दोनों हमारे दाएं बाएं हो गए और हमें उस बस्ती में ले आए जिसके आसार नशीब में हमें दूर ही से नजर आ गए थे। उस बस्ती में पत्थरों से बनी हुई सिर्फ एक ही इमारत थी और वो दोनों हमें साथ लिए उसी की तरफ बढ़ रहे थे। इमारत का सदर दरवाजा दूर ही से नजर आ रहा था और जल्द ही वो दोनों हमें घेरे हुए वहां तक पहुंच गए। फिर उनमें लंबूते चेहरे वाले का साथी बाहर ही रुक गया और हमें घोड़ों से उतार लिया गया। हमारे घोड़े सदर दरवाजे पर मुतय्यन मुहाफिजों ने अपने कब्जे में ले लिए, मगर वो मकरूज सूरत शख्स अब हमें हवेली के अंदर ले जा रहा था और कुछ ही देर बाद हमें भारी जबड़ों वाले एक दराज कद शख्स के सामने पेश कर दिया गया। मैं समझ गई कि यही शख्स सयान का नायब क्लोज हो सकता है। नसार ने उसके रूबरू घुटनों के बल झुक कर ताज़ीम दी और मैं नसार के हक़ में थी। नसार ताज़ीम देकर पीछे आ गया तो मैं आगे बढ़ी
और ये मेरे लिए पहला मौका था कि मैं यूं किसी के आगे झुकने पर मजबूर हो गई। ताज़ीम देने के बाद मैं भी नसार के करीब साथ झुकाकर खड़ी हो गई। बोल ऐ समाद, तूने इन्हें कहाँ से पकड़ लाया है और इन्होंने क्या जुर्म किया? भारी जबड़ों वाले ने लंबूतरे चेहरे वाले के मकरू सूरत शख्स को मुखातब किया। उसके लहजे से कदरे नागवारी का ज़हार हो रहा था, मगर वह बकरू सूरत वाले का नाम मुझे पहली बार मालूम हुआ। ऐ सियान के नायब कलोज, इन्हें मैंने ममनुआ रास्ते से पकड़ा है और ये अजनबी लगते हैं, रास्ता भटक गए होंगे। कलौज ने कहा, मगर ए कलौज, मुझे इन पर नसार के मुखबर होने का शुबा है। नसार के मुखबर, ये तू क्या कह रहा है? कलौज हैरत से बोला, क्या तुझे ऐसी खबर मिली है? खबर तो नहीं मिली ए कलौज, मगर सरदारों के सरदार सियान ने मुझे तेरे पास इसीलिए भेजा है कि अपनी आंखें खोली रखूं। समात के इन अल्फाज ने मुझ पर उसकी अहमियत वाज़े कर दी। वो कोई कम मर्तबे वाला शख्स बहरहाल नहीं हो सकता था, जैसा कि मैंने गुमान किया था। मैं उसे कोई मामूली मुहाफिज समझी थी और वो कलौज से बराबर की सतह पर बात कर रहा था। उसने कालूज को ताज़ीम भी नहीं दी। अब मैं समझा एसमात कि तू हवेली में रहने की बजाय क्यों इधर उधर भटकता फिरता है। कलौज हंस कर बोला और फिर कहने लगा, तूने इन पर नसार के मुखबर होने का शुबा किया है तो यकीनन तेरे पास इसकी कोई दलील भी होगी। ऐ कलौज, देखना चाहता है तू? अच्छा, मैं तुझे ऐसी दलील देता हूँ कि जिसकी तरवीद खुद तू भी ना कर सके। समात ये कहकर पलटा और फिर उसने झपट कर मेरे सर पर बंधी हुई चादर खींच ली और मेरे लहरिएदार बाल खुलकर मेरी कमर तक पहुंच गए। समात के जिस्म में यकीनन कोई खबीस रूह थी और उसने अब तक मुझ पर शुबा जाहिर नहीं किया था। इसके साथी का कहना यह है, और फिर समात ने वो बातें दोहराई जो सवाल और जवाब के नतीजे में उससे नसार से मालूम हुई थी। कलौज के चेहरे पर मैंने गुस्सा देखा और वो बड़ी सख्त नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। बातात, कौन है तू और यूं भेस बदल कर मेरी बस्ती में क्यों आई थी? कलौज मुझ पर बरस पड़ा। मुझे बोलने की इजाजत दे ऐ सरदार, मैं बताता हूँ। मेरी बजाय नसार आगे बढ़कर अदब से झुका। कलौज ने नसार की तरफ भी घूर कर देखा। बोल, तुझे बोलने की इजाजत है। ये औरत मेरी बीवी है और मुझे डर था कि रास्ते में उसे मुझसे कोई छीन ना ले, और मैं इसी लिए इसे मर्दाना कपड़े पहनाकर साथ लाया। और फिर तूने समाज से झूठ क्यों बोला? कलौज ने सवाल किया। ऐ कलौज, ये इसी तरह एक झूठ पर पर्दा डालने के लिए दूसरा झूठ बोलता रहेगा। तू इन दोनों को मेरे हवाले कर दे, मैं इनकी जुबानें खुलवा लूंगा और ये खुद ही इकरार करेंगे कि इन्हें हमारे दुश्मन नसार ने इधर भेजा है। समात के लहजे में बेरहमी थी। ठीक है ऐ समात, तू इन्हें अपने साथ ले जा। तेरा शुबा मुझे भी अब दुरुस्त लग रहा है। कलौज ने गोया हमें समात के रहमो करम पर छोड़ दिया और मुझे यूं लगा जैसे वह समात की बात मानने पर मजबूर हो। चल ऐ औरत, समात ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके लहजे में हकारत थी और मेरी कुव्वते बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी थी। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। तेरी ये मजाल कि तू समात का हाथ झटक दे। समात ने उस बार मेरे सर के बालों की तरफ हाथ बढ़ाया और मैंने एक नजर नसार की तरफ डाली और फिर खुद ही लपक कर समात की कलाई में दांत गाड़ दिए। उस वक्त नसार ने पीछे से झपट कर समात के दूसरे हाथ से राइफल छीन ली। फिर इससे पहले कि नसार समात से छीनी हुई राइफल का रुख कलौज की तरफ करता, मुहाफिज उस पर टूट पड़े और वो करीबी सतूनों की आड़ में खड़े थे और मुझे भी मसला मुहाफिजों ने नरगे में ले लिया। कलौज उठकर खड़ा हो गया था और समात इस वक्त तक एड़ियां रगड़ कर मर चुका और वो हैरत ज़दा सा होकर समाज की तरफ देख रहा था। और फिर उसकी निगाह मेरी तरफ उठी और वो किसी सांप की तरह फुंकारा, तू मुझे नसार ही की तरह कोई खतरनाक मुखबर लगती है ऐ औरत। और फिर वो नसार की तरफ पलटा, और तुझे भी आज मालूम होगा कि मुखबरों को कलौज कैसी इबरतनाक सजा देता है। इन्हें ले जाओ और जिंदा में डाल दो। मुझे और नसार को मसला मुहाफिज अपने नरगे में लिए एक तरफ बढ़े और मैंने वादे तौर पर महसूस किया कि वे मुझसे दूर ही दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने मेरे कमर से तलवार खींची और खंजर खींचा तो भी मेरी पुश्त दो राइफलों की नाली लगी हुई थी। वो कैद खाना इसी हवेली के अंदरूनी हिस्से में था जहां मुझे और नसार को एक नीम तारीख कोठरी में धकेल दिया गया और हमें वहां कैद हुए कुछ ही देर हुई थी कि कदमों की चाप सुनकर फिर लपक कर सलाखों तक पहुंच गई और मैंने सीढ़ियों से कलौज को उतरते देखा और फिर मुझे उसकी अक्ल में मसला मुहाफिज नजर आए और मैंने मुड़कर नसार की तरफ देखा। वो कोठरी के फर्श पर बैठा जाने किन सोचों में गुम था कि कदमों की चाप यकीनन उसने भी सुनी होगी, मगर वो उठकर खड़ा नहीं हुआ। तो किस ख्याल में है ऐ मर्ताक? मैंने दानिस्ता उसका नाम नहीं लिया था।
गनीमत था कि उसे इस बस्ती में पहचानने वाला कोई नहीं था, वरना अब तक वो जिंदा ना बचता। फिर भी उसे मुहावजों ने खासा जख्मी कर दिया और मेरे मुखातब करने पर नसार ने नजर उठाई। क्यों, क्या बात है? उस वक्त तक कोठरी का दरवाजा खोला जा चुका था। मसला मुहाफिज उसे तेजी के साथ घसीटते हुए कोठरी से बाहर ले गए और दोबारा दरवाजा बंद कर दिया गया। मेरी तरफ से मोहतात ही रहे। उन्होंने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया और मैं एक बार झुककर आहनी सलाखों से बाहर देखने लगी। कोठरियों के दरमियान शहर में नसार पर तशद्दुद किए जाने का बंदोबस्त हो रहा था। उसे एक टिकटकी से बांध दिया गया जो गालबन मुहाफिज अपने साथ ही लाए थे। इस अरसे में कई बार मैं अपने अंदर छुपी हुई पुर इसरार कुव्वतों के बारे में सोच चुकी थी और मेरी कोई भी पुर इसरार कुव्वत बेदार नहीं हो सकी। और अचानक मेरी समाज से दौड़ते हुए कुछ लोगों के कदमों की आवाजें टकराईं और ये आवाजें सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। कलोज को मैंने चौंकते हुए देखा। मुहाफिज सीढ़ियों की तरफ लपके। ठहर जाओ, मुझे ये वही लगते हैं और मेरी हवेली में कोई और इस तरह दाखिल नहीं हो सकता। कलोज ने उन मुहाफिजों को मुखातब किया जो सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे। वो कलोज के हुक्म पर वहीं रुक गए। ए कलोज, एक बुलंद आवाज सुनाई दी और फिर वो शख्स सीढ़ियों से उतरकर सामने आ गया। उसी के पीछे मैंने मुतअद्दिद मसला नौजवानों को आते देखा। सीढ़ियों से उतरकर आने वाला पहला शख्स और फिर कलोज से मुखातब हुआ। दोनों कैदियों को हमारे हवाले कर दे, वो ज़ईम के मेहमान हैं। आने वाले मसरा अफराद बूढ़े साहर ज़ईम के खिदमतगार हैं और मेरे लिए ये समझना मुश्किल ना था कि ज़ईम ने यकीनन अपनी पुरअसरार कुव्वतों के जरिए मेरे और नसार के बारे में जान लिया होगा। मैं कोठरी के सलाखों से बाहर का मंजर देख रही थी। कलोज ने सीढ़ियों से उतर कर आने वाले दराज कद शख्स से ज़ईम की निशानी तलब की। उस पर दराज कद शख्स ने अपना सीना खोल कर दिखा दिया और मैंने उस शख्स के सीने पर आड़ी तिरछी लकीरें देखी। कलोज एहतरामन उस शख्स के सामने झुक गया और फिर अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि दोनों कैदियों को अजीम ज़ईम के खिदमतगारों के हवाले कर दिया जाए। हुक्म सुनते ही मुहाफिजों ने नसार को टिकटकी से खोल लिया और फिर उन्होंने कोठरी का दरवाजा खोलकर मुड़ से भी बाहर आने के लिए कहा। मुहाफिज अब भी मेरी तरफ से पूरी तरह चौकन्ना थे, हालांकि मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मेरी कमर से तलवार खोलने और खंजर लेने के बाद उन्होंने जामे तलाशी के दौरान में मेरे जिस्म का ऊपरी ढीला ढाला लिबास भी तार काट कर दिया था। अब मेरे जिस्म के बलाई और ज़ेरी हिस्से पर सिर्फ 2 ज़हरे जामे थे और मेरे सर पर बंधी हुई चादर समारत ने भी पहले ही खोल कर फेंक दी थी। नसार को दूध कुब करते वक्त उसके लिबास का भी यही हुशर हुआ। वो जानवरों की खाल का सिर्फ एक ज़ेरे जामा पहने हुए था और कैदियों की बजाय हमारी हैसियत मेहमानों की हो चुकी थी। इसलिए कलाउज ने मुहाफिजों को हमारे हथियार लाने का हुक्म दिया। जब मुहाफिज हथियार लेकर आ गए तो उसने कुछ सोचते हुए सिर्फ नसार के दोनों हथियार यानी 2 धारी तलवार और खंजर चमड़े की पेटी के साथ उसे दिलवा दिए, मगर मुझे हथियार वापस देने से मुहाफिजों को रोक दिया। नसार ने चमड़े की पेटी अपनी कमर से बांध ली। उसी चमड़े की पेटी से तलवार और खंजर बंधे थे। ए अजीम साहर के खिदमतगार, कलाउज ने दराज कद शख्स को मुखातब किया, ये औरत बहुत खतरनाक है। उसने एक शख्स को कत्ल कर दिया। इसके पास हथियार होना खतरे की बात है, इसीलिए मैंने इस औरत के हथियार वापस देने से मुहाफिजों को रोक दिया। तुझे इस पर कोई एतराज तो नहीं? क्या ये वाकई किसी को कत्ल कर चुकी है? दराज कद शख्स ने मेरी तरफ देखते हुए हैरत से कहा, ये तो मुझे बड़ी नरमो नादक लगती है। हाँ, नरमो नादक तो है मगर खतरनाक भी। मैंने गलत नहीं कहा कि ये एक शख्स के खून से हाथ रंग चुकी है और मैं तुझे इसकी तरफ से चौकन्ना रहने की ताकीद करता हूँ। ए अजीम साहर के खिदमतगार, कलाउज ने संजीदगी से कहा और फिर उसने अपने कांधे पर पड़ी हुई चादर दूर ही से मेरी तरफ उछाल दी और मुझे मुखातब किया, ले इसे ओढ़ ले। नहीं, दराज कद शख्स बोल उठा, ये इसी तरह अच्छी लग रही है। ये कहते हुए उसकी नदीदी नजरें मेरी तरफ उठी हुई थीं। चादर मेरे पैरों के करीब पड़ी थी, मगर जब ज़ईम के खिदमतगार ने इनकार कर दिया तो मैंने चादर नहीं उठाई। साहर ज़ईम के खिदमतगार हमें उस हवेली से बाहर ले आए। वहाँ घोड़े पहले से मौजूद थे और वो लोग घोड़ों पर सवार होकर वहाँ तक पहुँचे थे। लड़की को मैं अपने साथ घोड़े पर बिठाऊंगा। दराज कद शख्स ने दाएं जानब मुड़कर एक खिदमतगार से कहा जो उसका नायब मालूम होता था, तू इस नौजवान को अपने घोड़े पर आगे बिठा ले और देख होशियार रहना। उसने अपने नायब को ताकीद की। हमें बहरहाल बूढ़े सार ज़ईम तक पहुंचना तो था, मगर इस तरह नहीं जिस तरह हमें ले जाया जा रहा था। हकीकतन हमारी हैसियत कैदियों ही की थी।
दराज कद शख्स ने हमारे बारे में कलाउ से जो कुछ कहा था कि हम ज़ईम के मेहमान हैं, उससे मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हुई। इन हालात में क्या कदम उठाना चाहिए, और मेरा ज़हन इसी सवाल में उलझा हुआ था। ज़ईम के सारे ही खिदमतगार मसला थे, उनके नरगे से निकल जाना आसान नहीं था। चल बैठ घोड़े पर, दराज का शख्स मुझसे मुखातब हुआ और मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। बस्ती से कुछ दूर निकल आने के बाद मैंने दराज कद शख्स के हाथों की आवारगी को महसूस कर लिया। मैं उसके दोनों बाजुओं के दरमियान थी। उसके अलावा उसका सीना भी मेरी पुश्त से लगा हुआ था। उसके सीने के दबाव से बचने की खातर मैं इस हद तक आगे खिसक चुकी थी कि अब मेरे लिए मजीद आगे बढ़ना मुमकिन नहीं रहा। उसके साथ घोड़े पर सफर करते हुए मुझे सख्त उलझन हो रही थी। उलझन के साथ साथ ही मुझे अब उसकी दस्त दराजियों पर गुस्सा भी आने लगा। बर्दाश्त की हद से गुजरने लगी तो आखिरकार मुझे उसे कहना ही पड़ा, ज्यादा बेकाबू ना हो और अपनी हद में रह। तुझे देखकर भला कौन काबू में रह सकता है? वो बेहयाई से हंस कर बोला। नसार जिस घोड़े पर था वो भी साथ साथ दौड़ रहा था और नसार की नजरें मेरी ही तरफ थी। उसने भी शायद सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया कि मैं किस मुश्किल में गिरफ्तार हूँ। मुझे उसके चेहरे पर गुस्से के आसार दिखाई दिए। दराज कद शख्स अपनी नाजीबा हरकतों से बाज ना आया तो मैंने दानिस्ता चीख कर उसे मुखातब किया कि इसे चीख कर मुखातब करने की वजह यह थी कि मैं उससे जो कुछ कहूँ नसार भी सुन ले। देख ए ज़ईम के खिदमतगार, अब भी अगर तू ना माना तो तुझे मेरी बात ना मानने की बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जवाब में वो शायद मेरी बेबसी पर हंसा और फिर उसने बड़े जोर से मेरे जिस्म में चुटकरी भर ली और मेरे मुंह से चीख निकल गई। तो उसने मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, अब अगर तूने किसी बात पर एहतजाज किया तो इससे भी ज्यादा जोर से। और फिर उसकी बात पूरी ना हो सकी और वो चीख उठा। उसकी एक उंगली मेरे दांतों के दरमियान आ गई थी और मैंने उसके खून का जायका अपनी जुबान पर महसूस किया। उसने पीछे से मेरे जिस्म पर दबाव डाला और मैंने उसकी उंगली छोड़ दी और मेरे नज़दीक इतना काफ़ी था। कटी हुई उंगली के जरिए उसके खून में मेरा खतरनाक जहर दाखिल हो चुका था। अब वो सिर्फ चंद लम्हों का मेहमान था और मैंने घोड़े की लगाम थाम ली और नसार की तरफ मैंने खेत नजरों से देखते हुए अपने साथ घोड़े पर बैठे दराज कद शख्स को मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर तशन्नुज के आसार थे और चेहरे की रंगत तेजी से नीली पड़ती जा रही थी। जहर उस पर असर अंदाज होने लगा और मैंने उसे घोड़े से गिराने में देर नहीं की। उसी वक्त नसार ने तेजी के साथ खंजर निकाला और पलट कर दराज कद शख्स के नायब का सीना छेद दिया। उसने सीने के बाएं हिस्से की को निशाना बनाया और फिर नसार ने भी अपने शिकार को घोड़े से नीचे धक्का दे दिया। ज़ईम के इन दोनों खिदमतगारों को इतनी तेजी के साथ और गैर मुतवक्का तौर पर कत्ल किया गया था कि दूसरे मसला खिदमतगार गालबन बौखला गए थे और वो सब मेरा या नसार का ताक़ब करने के बजाय अपने मकतूल साथियों की लाशों के करीब रुक गए थे। फिर उनमें से किसी को हमारा ख्याल आया और वह चीख उठा कि वो दोनों फरार हो रहे हैं। उस वक्त तक मैं और नसार अपने अपने घोड़े दौड़ाते हुए खासी आगे निकल आए और फिर मैंने खासे फासले पर चंद घुड़सवारों को अपने ताक़ब में आते देखा। आधे से ज्यादा घुड़सवार अपने साथियों की लाशों के पास ही रुक गए। हमारे और उनके ताक़ब करने वालों के दरमियान इतना फासला था कि अगर वो हम पर गोलियां चलाते तो शायद हम उनकी गोलियों में जिद में आ जाते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें गालबन ये हुक्म दिया गया था कि हमें जिंदा गिरफ्तार करके लाएं और किसी तरह की कोई तकलीफ ना भी पहुंचाएं। अगर ऐसा ना होता तो हमें बांध कर भी ले जा सकते और ज़ईम ने अगर उन्हें वाकई ऐसे ही अहकाम दिए थे तो हमारी जिंदगी को कोई खतरा ना था और हम महफूज थे। हम दोनों घोड़ों की पूंछ से तकरीबन चिपके हुए थे और ऐसा तेज रफ्तारी का सबब था। हमारी इसी तेज रफ्तारी की वजह से ताक़ब करने वालों और हमारे दरमियान लम्हा बेलम्हा फासला बढ़ता जा रहा था और हम जिस इलाके से गुजर रहे थे वहां दूर दूर तक छोटी बड़ी चट्टानें बिखरी हुई थी और ये इलाका ऐसा था कि हम अपना ताक़ब में आने वाले को आसानी से धोखा दे सकते थे। और मैंने बुलंद आवाज में अपने इस ख्याल का इज़हार नसार से किया और उसने मेरी तायद की और फिर उसी के साथ हमने बड़ी तेजी से रास्ता बदल दिया और एक बड़ी सी चट्टान के पीछे चले गए। काफी देर तक हम दम साधे वहां छुपे रहे तो दौड़ते हुए घोड़ों के करीब आने की आवाजें सुनाई दी और फिर वो आवाजें बिल्कुल करीब आकर दूर होती चली गईं। तो आकब करने वाले चट्टान की दूसरी तरफ से घोड़े दौड़ाते हुए आगे चले गए थे और जब वो आवाजें बिल्कुल मादूम हो गई तो मैंने सुकून का सांस लिया। ज़ईम के खिदमतगारों के चुंगल से निकलने के लिए खुद बगुद हालात हमारे हक में इस्तवार हो गए थे और खुद हमने पहल इस सिलसिले में कुछ नहीं सोचा था।
चट्टान की आड़ से कुछ देर के बाद हम निकले और इर्द गिर्द का जायजा लिया। एक जन्म कुछ फासले पर मुझे पहाड़ करीब करीब नजर आए। वो देख नसार, मैंने नसार को उस तरफ तवज्जा किया। कहीं यही पहाड़ तो हमारी मंजिल नहीं? हाँ ऐतून, नसार जवाब में बोला। महल्ले वकू से तो ये वही पहाड़ लगते हैं जिनमें से एक ही हमें तलाश है और जहाँ साहर ज़ईम का ठिकाना है। मैं अभी नसार की बात का कोई जवाब देने ही वाली थी कि मेरे मुंह से खौफज़दा सी चीख निकल गई। मेरी आंखों ने ऐसा ही दहशतनाक मंजर देखा। पहाड़ों की जन्नत से अचानक एक अजीबो गरीब और डरावनी मखलूक नमूदार हुई। वो मखलूक फिजा में परवाज करती हुई इंतहाई तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। उसकी जिसामत इंसानी जिस्म से ज्यादा थी। पुश्त पर किसी तितली की तरह बड़े बड़े पर थे। उसका चेहरा बेहद खौफनाक और मकड़ी जैसा था। 4 हाथ थे जिनमें 3-3 लंबी उंगलियां थी, हथेली ना होने के बराबर, और पैरों की जगह 3 उंगलियां किसी तने से फूटी हुई शाखों की तरह फैली हुई थी। उसके दाएं दोनों हाथों में से ऊपर वाले हाथ में छोटा सा एक डंडा था और डंडे के सर के पास 3 नोकें उभरी हुई थी। उसके सर पर 2 बड़े बड़े पर सींगों की तरह उगे हुए थे और दोनों बड़ी बड़ी आंखों में तेज रोशनी थी और बदहैबत थूथनी आगे को निकली हुई। सीने और पेट की खाल पर जगह जगह मोटी सिलवटें पड़ी हुई थी और पैरों में आहनी तारों जैसे बाल थे। वो बिला चंद ही लम्हों में इतने करीब आ चुकी कि तफसील से उसका जायजा ले सकती थी। अचानक उसी अजीबो मखलूक के करीब वैसी ही 3 बलाएं और दिखाई दी जो शायद पहले उसके पीछे थी और अब दाएं जन्म नजर आ रही थी। उनमें से 2 के हाथों में नेज़े और एक के हाथ में कुल्हाड़ा था। भाग चल नसार, अचानक जैसे मुझे होश आ गया और मैं चीख उठी। उसी के साथ मैंने घोड़े को एड़ लगाई। नसार ने मेरी तकलीद की। अब हम घोड़ा दौड़ाते हुए कुछ दूर आ गए होंगे कि आगे आगे परवाज करने वाली बला मुझ पर झपटी। वो सामने से मेरी तरफ आई थी। उसने बड़ी बड़ी 3 उंगलियों वाला हाथ आगे बढ़ाकर अचानक मेरा दाएं बाजू पकड़ा और घोड़े की पूंछ से मुझे किसी फूल की तरह उठा लिया। जिस घोड़े पर मैं बैठी हुई थी वो अपनी जोर में आगे भागता चला गया और फिर उस बला ने मुझे फिजा में उछाल दिया। मैं सर के बल जमीन की तरफ गिरने लगी। नसार को मैंने उधर झपटते देखा। वो शायद मुझे जमीन पर गिरने से पहले ही फिजा में लपक लेना चाहता था। सर के बल पथरीली जमीन पर गिरने का मतलब यकीनी मौत ही था और फिर इससे पहले कि मैं जमीन पर गिर जाती उस अजीब मखलूक ने फिजा में गोता लगाया और मेरा दायां पैर पकड़ लिया और मेरे जिस्म को झटका सा लगा और वो मखलूक मुझे उसी तरह लटकाए हुए एक जन्म परवाज करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो फिजा में बुलंद होते जा रही थी। नसार को घोड़ा दौड़ाते हुए मैंने एक चट्टान पर चढ़ते देखा, मगर उस कटावदार भरभरी सी चट्टान पर घोड़े के लिए चढ़ना भी मुमकिन नहीं था। नसार ने घोड़े की पूंछ से कूदकर तेजी के साथ चट्टान पर चढ़ने लगा। उधर नसार उस चट्टान की कई फटी और ऊंची नीची बलाई सिता पर पहुंचा। उधर वो बला मुझे लटकाए हुए चट्टान के ऊपर से गुजरी। नसार ने मुझे उस बला से निजात दिलाने के लिए इंतहाई तेजी का सबूत दिया और मैंने नसार को 2 धारी तलवार निकालते देखा और फिर वो चट्टान के एक नोकीले और तिरछे पत्थर पर चढ़ गया। उसी के साथ उसने उछलकर अपने बाएं हाथ से उसका बला का दायां पैर घुटने के पास से पकड़ लिया और उसी वक्त मैंने फिर भुरभुरी चट्टान के उस नोकीले हिस्से से पत्थरों को टूट कर बिखरते देखा। नसार का दायां पांव टूटते हुए पत्थरों पर था और बायां पांव फिजा में मुअल्लक था और बाएं हाथ से वो उस बला का एक पैर पकड़े हुए था और दायां हाथ जिसमें वो 2 धारी तलवार थी उस बला पर हमला करने के लिए उठा हुआ था। ऐन उसी लम्हे मैंने फजार नसार की तरफ बकिया 3 बलाओं को लपकते देखा और फिर मेरा रुख बदल गया। अब मेरी पुश्त नसार की तरफ हो गई थी और मैं उसे देखने से कासर थी और चंद ही लम्हे के बाद मेरी समाज से नसार की चीख टकराई। हालांकि मैं खुद भी मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला थी, उसके बावजूद ये सोचकर कि जाने नसार पर क्या गुजरी हो मेरा दिल बैठ गया। उसी लम्हे अचानक उस बला ने फिजा में तेजी से चक्कर खाना शुरू कर दिए। उस बला के साथ मैं भी फिजा में गर्दिश कर रही थी और मेरा सर घूमने लगा और फिर मैं ज्यादा देर तक अपने हवास बरकरार ना रख सकी। मेरे ज़हन पर अंधेरे की दबीज चादर फैलती चली गई। मालूम नहीं कब तक बेहोश रहने के बाद मुझे होश आया और मैंने आंखें खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। वो कोई गार मालूम हो रहा था जहां मैं तनहा नहीं थी। मेरे सामने मज़का खेज सूरत वाला एक पिस्ता कद शख्स खड़ा हुआ था जिसकी ठोड़ी से
गिलहरी की दुम जैसी दाढ़ी लटकी हुई थी। उसके दोनों रुखसार फूले हुए थे और तंग माथे के नीचे आंखें हलकों में दंसी हुई थी। होंठ पतले और जिस्म गोल मटोल सा था। ऐ आतून, तुझे तेरा ज़ईम खुश आमदीद कहता है। पिस्ता कद शख्स के होंठ हिले और मैंने उसकी मनमनाती हुई सी आवाज सुनी। ये आवाज मैं पहले भी सुन चुकी थी। वो कह रहा था कि मुझे हरगिज ये अंदाजा नहीं था कि तू इतनी खूबसूरत होगी, वरना मैं हरगिज सयान से ये वादा ना करता कि तुझे उसके हवाले कर दूंगा। बूढ़े ज़ईम ने, जो कि सयान का नायब था, कहा, यकीनन तेरे हुस्न की तारीफ में बुकल से काम लिया गया। यकीन कर ए आतून, ए जाने ज़ईम, कि तू इससे कहीं ज्यादा हसीन और पुरकशिश है कि जितना मुझे बताया गया। अब तुझे देखकर मैंने ये फैसला किया कि सयान से किए हुए वादे को भुला दूं और तुझे हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूं। बोल, क्या तू इस पर खुश नहीं कि अजीम साहर ज़ईम की महबूबा कहलाए? तुझ पर देवताओं की लानत हो ए ज़ईम। मैं नफरो हकारत से बोली, मैं तेरे ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। तुझे शायद खबर नहीं आतून कि ज़ईम के रूबरू आज तक किसी लड़की को यूं बात करने की जुर्रत नहीं हुई। उसका लहजा बदल गया। तू मेरी नरमी और मोहब्बत से नाजायज फायदा ना उठा, वरना होगा वही जो मैं चाहूंगा, मगर तू सामान्य इबरत बना दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि तू खुद अपनी मर्जी से खुद को मेरे हवाले कर दे और मेरी ही बनकर रहने में फख्र महसूस कर। इसी में तेरी भलाई है। मुझे नसार का ख्याल आया और मैं दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने सोचा कि इस बूढ़े साहर को यकीनन नसार के बारे में मालूम होगा। मेरा साथी कहाँ है? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ ज़ईम से सवाल किया। तेरा साथी? वो जोर से हंस पड़ा। तू उसका हशर देखना चाहती है? हाँ, मुझे बता ए ज़ईम कि वो कहाँ और किस हाल में है। मैं बेताबी से बोली और फिर सख्त लहजे में उससे कहा, सुन ए ज़ईम, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरे साथी के लिए मैंने अपने खिदमतगारों को हुक्म दिया था कि उसे भूखे आदमखोर चूहों के गार में फेंक आए। उसने जवाब दिया, नहीं। मैं पूरी कुव्वत से चीख उठी, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपना हुक्म वापस भी ले सकता हूं, मगर सिर्फ एक सूरत में, कि तू मेरी बात मान ले, क्योंकि अभी वक्त है। मेरे खिदमतगार अभी चूहों वाले गार तक नहीं पहुंचे होंगे। वो गार बराबर वाले पहाड़ में है। खिदमतगारों को अभी रोका जा सकता है। जल्द फैसला कर आतून, वरना कुछ ही देर के बाद तेरा साथी आदमखोर भूखे चूहों की खुराक बन जाएगा। ज़ईम का लहजा खौफ ज़दा कर देने वाला था और उसके लहजे से मेरे लिए ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि नसार के बारे में उसने मुझे जो कुछ बताया है वो गलत नहीं। मैं सोच में पड़ गई, मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसकी कैद में हूं और वह जबरदस्ती भी मुझे अपना हर हुक्म मानने पर मजबूर कर सकता है। और फिर मुझे ख्याल आया कि मैं और नसार अजीम मेहमान की एमा पर यहाँ आए हैं। अजीम मेहमान ने हमें पहले बूढ़े साहर ज़ईम पर गालिब आ जाने की खुशखबरी सुना दी थी। ऐसी सूरत में अगर मैं मसलते वक्त के पेश नज़र उसकी बात मानने का इकरार भी कर लूँ तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिलहाल नसार की जिंदगी बचाना जरूरी, बाद में जो हो देखा जाएगा। और मुझे ये फैसला करने में सिर्फ चंद ही लम्हे लगे। ऐ ज़ईम, मेरे साथी को मौत के हवाले ना कर, मैं तेरी बात मानने पर आमादा हूं। मैं बोल उठी, मुझे यकीन था आतून कि तू यही फैसला करेगी। वो आहिस्ता से हंसकर बोला और मैं अभी आया। यह कहकर वो तेजी के साथ गार के दहाने से निकल गया। मैं उस गार में फिर अकेली रह गई और ज़ईम के जाते ही मैं जल्दी से उठी और गार के दहाने की तरफ लपकी। मैं देखना चाहती थी कि उस गार से बाहर निकल सकती हूँ या नहीं। और मैं जैसे ही गार के दहाने की तरफ निकली, चौंक उठी। दहाने के बाहर बेहद गहरी खाई थी। बहुत नीचे नोकीली चट्टानें नजर आ रही थी। गार से निकलते हुए अगर मैं चौकन्ना और मोहतात ना होती तो यकीनन उस गहरी खाई में गिर पड़ती और फिर शायद जिंदा ना बचती। नोकीली चट्टानों से टकराकर मेरा जिस्म पाश पाश हो जाता। मगर वो ज़ईम, वो गार से निकल कर कहाँ गया? और मेरे जहन में सवाल जागा, वो इस खाई में क्यों नहीं गिरा? अपने जहन में पैदा होने वाले सवालों का जवाब मेरे पास सिर्फ यही था कि ज़ईम बहरहाल एक साहर था। ये उसकी दुनिया थी, उसका तिलस्म कदा था और जहां वो जो चाहता कर सकता था। और यही सोचती हुई मैं दोबारा गार में वापस आ गई। उस गार से फरार होना मुमकिन नहीं था।
ज़ईम को वापस आने में खिलाफ तवक्का कुछ देर लगी और वो गार के दहाने से ही अंदर आया था। और अब मुझे इस पर हैरत नहीं हुई, हैरत मुझे एक और बात पर हुई कि ज़ईम के साथ नसार भी था और उसके वो खिदमतगार भी, और खिदमतगारों में से एक के हाथों में बड़ा सा तबाक था और दूसरे के पास दूसरा सामान। मैं तेरे साथी को इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ आतून कि तुझे इसके जिंदा होने का यकीन आ जाए, ज़ईम ने मुझे मुखातब किया। मैंने नसार की तरफ देखा और यूं मालूम हो रहा था जैसे वो आलमे ख्वाब में हो। यकीनन इस वक्त वो साहिर ज़ईम के शहर में था और बिल्कुल गुमसुम, खामोश और बेहरकत। ज़ईम ने उसे एक जगह खड़ा कर दिया और वो उसी जगह नजर झुकाए किसी मुजस्मे की तरह खड़ा हुआ था। और ज़ईम के खिदमतगारों ने वहीं गार में हमारे लिए बिस्तर बिछा दिए और फिर बड़ा सा तबाक, एक बर्तन और 2 कटोरे बिस्तर पर रख दिए। तबाक एक कपड़े से ढका हुआ था। खिदमतगार अपने काम से फारग होकर ज़ईम के इशारे पर गार से बाहर चले गए तो ज़ईम ने नसार को मुखातब किया, ऐ नौजवान, बिस्तर पर जाकर बैठ जा। ज़ईम का हुक्म सुनते ही नसार के जिस्म ने हरकत की और फिर वो जैसे नींद में चलता हुआ एक बिस्तर पर बैठ गया। आतून, ज़ईम ने मुझे मुखातब किया, जहां तक मैंने अंदाजा लगाया है तू अपने साथी से मोहब्बत करती है, मगर सुन कि अब तेरी सारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, अपने ज़ईम के लिए। और मैं इस नौजवान को इसीलिए तेरे साथ इस गार में छोड़े जा रहा हूँ कि तेरा इम्तहान ले सकूँ और देख सकूँ कि तू मेरी अमानत में खियानत तो नहीं करती। उसका नाम शायद मरताक है और उसने यही नाम कलोज की बस्ती में बताया था। हाँ ए ज़ईम, मैंने जल्दी से तस्दीक कर दी। वो बहरहाल दुश्मन का इलाका था, वहाँ नसार की हकीकत ज़ाहिर होना उसके लिए इंतहाई खतरनाक था। तू और तेरा साथी दोनों ही भूखे और थके हुए लगते हैं, सो ए अतून, पेट भर और कुछ देर आराम कर ले, फिर मैं तुझे अपनी खिदमत में तलब करूंगा। और ये कहते ही ज़ईम के जाने के लिए गार के दहाने की तरफ मुड़ गया। फिर ज़ईम गार के दहाने से बाहर चला गया। मैंने नसार की तरफ देखा, वो बैठे बैठे एकदम उछल पड़ा। चंद लम्हे वो हैरत से इधर उधर देखता रहा और उसके बाद मेरी तरफ मतवज्जा होकर कहने लगा, ए अतून, हम यहाँ कहाँ हैं? तुझे तो एक बला आसमानों की तरफ उड़ाए ले जा रही थी और मैंने एक चट्टान पर चढ़कर उसका पैर पकड़ लिया था। फिर क्या हुआ? नसार के चौड़े माथे पर शिकने उभर आईं। उसके चेहरे से यूं लग रहा था जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, मुझे याद आ गया। मैं इसलिए चीख उठा था कि मुझ पर हमला आवर होने वाली बलाओं में से एक ने सर पर किसी भारी चीज से ज़रब लगाई थी और उसी के साथ मेरे हाथ से तलवार छीन कर नयाम में रख दी थी। और फिर मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया था। और अब मुझे होश आया तो मैंने खुद को इस गार में तेरे साथ देखा, नसार ने रुक रुक कर बताया। मगर मैं तेरे हवास वापस आने से पहले बहुत कुछ देख चुकी हूँ। तो तूने क्या देखा आतून, और तुझ पर क्या गुजरी? नसार बेचैनी से बोला। ये बातें हम खाना खाते हुए भी कर सकते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं आगे बढ़कर तबाह के करीब बैठ गई। हाँ, भूखा तो मैं भी हूँ, ये कहकर नसार भी करीब आ गया। गुज़श्ता रोज से हमने कुछ खाया नहीं था। खाना लजीज था और भूख भी जोर से लगी थी। हमने खूब सैर होकर खाना खाया। खाना खाते हुए मैंने नसार को बता दिया कि हम ज़ईम की कैद में है और ये कि ज़ईम से मेरी मुलाकात हो चुकी और वो भी अपने खिदमतगारों को लेकर यहाँ से गया है। दानिस्ता मैंने उसे ये नहीं बताया कि ज़ईम मुझसे क्या चाहता था। उसके अलावा ये बात भी छुपा गई कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए मैंने ज़ईम की बात मान ली। नसार को मैंने बताया था कि उसी की तरह मुझे भी होश नहीं रहा और जब होश में आया तो मैंने अपना अलावा नसार को भी इसी गार में देखा जो ज़ईम के शहर में गिरफ्तार था। ज़ईम गार से चला गया तो ये शहर टूटा और मैं उसे जानबूझकर मरताक के नाम से मुखातब कर रही थी। फिर तो वो बूढ़ा साहर तुझे सियान के हवाले कर देगा। नसार के लहजे से फिक्रमंदी का इज़हार होने लगा और मेरी तमाम बातें उसने पूरी तवज्जो और इन्हमाक के साथ सुनी थी। उसी के बाद उसने अपने खदशे का इज़हार किया। नहीं ए मरताक, मैंने उसे तसल्ली दी, वो ऐसा नहीं करेगा। मगर आतून, उसे भला ऐसा करने से कौन रोक सकता है? वो इसीलिए तो तुझे अगवा करना चाहता था। क्या तू भूल गया मरताक कि आखिरकार नेकी को बदी पर गालिब आना है? मैंने असल वजह पर कहकर पर्दा डाल दिया और मैं नसार को हकीकत से आगाह करके मजीद फिक्रमंद नहीं करना चाहती थी और मेरा इशारा अजीम हिम्मत की पेशगोई की तरफ था। हाँ अतून, नसार बड़बड़ाया, मैं ये बात भूल गया था, वो शायद ऐसा नहीं कर सकेगा।
शायद नहीं बल्कि यकीनन ए मरताक वो बूढ़ा साहर मुझे सियान के हवाले नहीं करेगा। मैंने पुरयकीन लहजे में कहा, तू ठीक कहती है, आखिर फतह नेकी की होगी। इस मर्तबा नसार के लहजे में भी यकीनी की झलक थी। अब वो कदरे पुरसकून होता जा रहा था। खाना खाए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी कि मुझे अपने ज़हन पर गनूदगी से महसूस होने लगी। नसार को भी मैंने ऊँगते हुए देखा। क्या तुझे नींद आ रही है? हाँ मरताक, मैंने अपने ज़हन पर छा जाने वाली गनूदगी से डरते हुए पूछा। फिर उसने एक भरपूर इंगड़ाई ली और बिस्तर पर लेट गया और मेरी आंखें भी जैसे खुद ब खुद बंद होती जा रही थी। कुछ देर मैंने कोशिश की कि जागती रहूं और फिर एक तरफ को लड़क गई। दोबारा जागने पर खुद को मैंने एक नई जगह देखा। ये वो गार नहीं था जहां मैं सोई थी। आंखें खोलते ही तेज रोशनी से मेरी पलकें झपक गईं और सामने ही दीवार में एक मशल प्यूसत थी जिसकी रोशनी बराह रास्त मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मैं एक नरम गुदार बिस्तर पर दरा थी। पत्थरों को काट कर बनाया हुआ वो एक चौकोर सा दालान था और मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर उस जगह का जायजा लिया। वहां मुझे एक अजीब सी नामानोस खुशबू का एहसास भी हो रहा था। बाएं जनब एक सुरंग सी नजर आ रही थी। दालान में जलने वाली मशल की रोशनी कुछ दूर तक सुरंग को रोशन कर रही थी। उसके बाद नीम तारीकी और फिर मुकम्मल तारीकी। मैं जमीन से कदरे बुलंदी पर एक चबूतरे के ऊपर लेटी हुई थी। उसी पथरीले चबूतरे पर नरमो गुदार बिस्तर बिछा हुआ था। मैं उठकर बैठ गई और उसी वक्त किसी के कदमों की चाप सुरंग की तरफ से आई। मेरे आसाब तन गए। कदमों की चाप करीब आती गई और जरा ही देर के बाद सुरंग में से मैंने साहर ज़ईम को उस दौरान में दाखिल होते देखा। साहर ज़ईम सहरा आतून को अपनी खिलवत गाह में खुश आमदीद कहता है। ज़ईम मुस्कुराता हुआ चबूतरे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। तू उठकर क्यों बैठ गई? ऐ मेरी सहरा, लेटी ही रह कि तू लेटे हुए और भी हसीन दिखाई देती है। ज़ईम के इरादे मुझे खतरनाक मालूम हो रहे थे। उसके मज़का खेज चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी और मैंने अपने इर्द गिर्द चमकीला दूधिया हिसार कायम होते देखा। और ज़ईम आगे बढ़ते बढ़ते एकदम ठठक गया। उसने मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा और मेरी तरफ फूंक मारी। दूसरे ही लम्हे वो चमकीला दूधिया हिसार गायब हो गया। वो हिसार मेरे लिए नया नहीं था और ना उसका यूं नादीदा हो जाना मेरे लिए कोई नई बात थी। वो हिसार पहले भी मेरी नजरों से उजल हो चुका था और ये उस वक्त की बात थी जब साहर ज़ईम ने पहली बार मुझ पर पुर इसरार हमला किया था। मगर इस वक्त हिसार के नादीदा हो जाने से मैं कुछ घबरा गई। दरअसल साहर नदीम ने मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा था और ये उसका रद्दे अमल भी हो सकता था। इसी ख्याल से मैं फिक्रमंद हो गई। देखा तूने आतून, साहर ज़ईम जोर से हंसकर कहने लगा। मैंने तेरे हिफाजती हिसार गायब कर दिया और मुझे बूढ़े वहाब ने यह भी बताया था कि तू कुछ पुर इसरार कुव्वतों का मालिक भी है। मगर ऐ जाने ज़ईम, तेरे सामने इस वक्त कोई मामूली आदमी नहीं खड़ा बल्कि इस जमाने का सबसे बड़ा साहर खड़ा है और तेरी कोई भी पुर इसरार कुव्वत मेरे सामने कारगर नहीं होगी। ये कहते हुए वह निपे तले कदमों से फिर आगे बढ़ने लगा। अपनी मौत को दावत ना दे ऐ ज़ईम, रुक जा। मैं हाथ उठाकर जोर से बोली। क्यों? क्या तू मुझे अपने वादे के मुताबिक करीब आने का मौका नहीं देगी? उसका जुमला पूरा ना हो सका और वो चबूतरे के बिल्कुल करीब आ चुका था और ज़ईम का जुमला पूरा होने से पहले ही उसके जिस्म को शायद जबरदस्त झटका सा लगा और मैंने उसे उछल कर पीछे गिरते देखा। उसके मुंह से चीख निकल गई थी। मैं समझ गई कि साहर ज़ईम मेरे गिर्द खींचे हुए हिसार को अबूर नहीं कर सका और उससे टकरा कर पीछे जा पड़ा। इसका मतलब यही था कि वो हिसार नादीदा हो जाने के बावजूद अब तक कायम था। उससे मेरा हौसला बढ़ गया। साहर ज़ईम से नबर्द आजमा होने के लिए यकीनन अजीम हिमन मेरी मदद कर रहा था। तूने देख लिया ऐ बूढ़े अबुल हास कि साहर के मेरे करीब आकर तेरा क्या हशर हुआ। क्या अब भी तू अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आएगा? मैंने साहर अज़ईम को मुखातब किया जो जमीन से उठ रहा था। इतनी सी बात पर गरूर न कर ऐ साहरा, ज़ईम उठता हुआ बोला। तू मुझे इन मामूली चुटकुलों से मुतासर नहीं कर सकती। मैं तुझे अभी घुटने टेकने पर मजबूर कहता हूँ। ये कहते ही ज़ईम ने बाआवाज़ बुलंद किसी अजनबी जुबान में कुछ कहा और दूसरे ही लम्हे मुझे दूर कहीं से किसी दरिंदे की सी गुर्राहट सुनाई दी और फिर यूं लगा जैसे वो दरिंदा तेजी से दौड़ता हुआ करीब आता जा रहा हो। मैं उसके पैरों की भारी धमक सुन रही थी। धमक सुरंग की तरफ से सुनाई दी। और क्यों अभी तक खौफजदा हो गई आतून? साहर ज़ईम जोर से हंसा। उसने शायद मेरे चेहरे पर खौफ के आसार देख लिए थे। नहीं, मैं खौफजदा नहीं हूँ।
बड़बड़ाते हुए मैंने खुद को तसल्ली दी, ये बूढ़ा साहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि सुरंग से एक भयानक मखलूक बरामद हुई। उसका आधा जिस्म एक ताकतवर बैल का और आधा जिस्म किसी इंतहाई तंदुरुस्त इंसान का लगता था, और यूं लगता था जैसे उसकी गर्दन से इंसानी जिस्म को जोड़ दिया गया हो। उसकी दुम उठी हुई थी और वो अपने चारों खुरों को मुझ पर हमला करने के इंदाज में पथरीले फर्श पर रगड़ रहा था। चार पैरों के अलावा उसके इंसानी जिस्म के सर पर 2 नुकीले सींग भी थे और इंसानों ही की तरह मजबूत हाथ भी थे। वो मुझसे कुछ फासले पर आकर रुक गया और अपनी बड़ी दहकती हुई आंखों से मुझे घूर रहा था। बोल आतून, क्या मैं इस खौफनाक मखलूक को तेरे ऊपर हमला करने का हुक्म दूं या तो मेरी बात मानने पर आमादा है? ज़ईम मुझसे मुखातब हुआ और मैंने साहर ज़ईम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे अंदर जाने कहां से इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि मैं उस भयानक मखलूक की आंखों में आंखें डाल दी। उस वक्त कोई जैसे मुझसे कह रहा था, ऐ मावला, तू इस मखलूक को जलाकर खाक कर सकती है। देवताओं ने तुझे इतनी कुव्वत दी है ऐ मावला। मुझे ये आवाज अपने अंदर ही से आती हुई महसूस हुई, और ये आवाज किसी दूसरे की नहीं, खुद मेरी अपनी आवाज थी। उसी के साथ मैंने अपने सारे जिस्म में बिजलियां सी दौड़ती महसूस की और फिर उनका मरकज मेरी दोनों आंखें बन गई। दूसरे ही लम्हे मेरी आंखों से तेज रोशनी निकली और वो खौफनाक मखलूक पर मुर्तकिज हो गई। अचानक यूं लगा जैसे उस मखलूक का जिस्म एकदम भड़क उठा हो। उसके जिस्म में आग लग गई थी और वो बुरी तरह चीखने लगा। देखते ही देखते वो खौफनाक मखलूक वाकई जलकर खाक हो गई। ऐन उसी लम्हे एक जबरदस्त धमाका हुआ और उस पथरीले चौकोर से दलान में हर तरफ धुआं ही धुआं बन गया, और फिर मैंने उस धुएं में सार ज़ईम को गायब होते देखा। बूढ़ा साहर के चेहरे पर मुझे सरासीमगी के आसार नजर आए और मैंने उस धुएं में अपना दम घुटता हुआ महसूस किया, और फिर मेरे होशो हवास बरकरार न रह सके। होश आने पर मैंने खुद को अंधेरे में महसूस किया और फिर ये अंधेरे मुझ पर रोशन हो गए। मेरे अंदर अंधेरे में देखने की कुव्वत बेदार हो गई थी और मेरी निगाह जिस तरफ उठती उन अंधेरे उधर से सिमट जाते और फिर उसी गार में आ गई जहां नसार था। वो भी अब तक बेखबर सो रहा था। उसे यकीनन कुछ भी नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या गुजर चुकी है। मेरे लिए अब उसे हालात से मजीद बेखबर रखना मुनासिब नहीं था। यही सोचकर मैं आगे बढ़ी और हिसार का ख्याल आ गया। क्या खबर वो हिसार मेरे अतराफ अब भी कायम हो। वो नादीदा हिसार नसार के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था। सार नदीम ने मेरे अंदाजे के मुताबिक वक्ती तौर पर पिसपाई इख्तियार कर ली थी और गायब हो गया, और मेरे ख्याल में यही वक्त उस पर ज़रब लगाने का था, और मैंने इसी ख्याल से नसार को जगाने के लिए उसे आवाज़ें देना शुरू कर दी। नसार पर शायद बहुत गहरी नींद मुसल्लत थी। वो खासी देर के बाद जागा और नींद में डूबी हुई आवाज के साथ उसकी आवाज उभरी, क्या बात है आतून, तू मुझे किस लिए आवाजें दे रही है? जाग जा, उठकर बैठ जा ऐ मरताक। मैंने दानिस्ता उस वक्त भी नसार का नाम लेने से गुरेज किया। रात, क्या रात हो गई है आतून, हर तरफ अंधेरा क्यों है? नसार की नींद में डूबी हुई आवाज फिर सुनाई दी और वो भी अभी तक उठकर नहीं बैठा था। हाँ ऐ मरताक, रात हो चुकी और हर तरफ अंधेरा फैला हुआ है, मगर तू इस तरह अंधेरे में भी देख सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं सब कुछ देख रही हूँ। मैंने ये कहकर गोया नसार के अंदर छुपी हुई पूरी इसरार कुव्वतों को बेदार होने की तरगीब दी। आतून, मैं इस अंधेरे में देख सकता हूँ और मुझे भी नजर आ रहा है। ये कहते हुए नसार जल्दी से उठकर बैठ गया और मेरी तवक्का के मुताबिक नसार के अंदर पोशीदा पूरी इसरार कुव्वतें जाग उठी थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बार नसार पर अंधेरे रोशन हो चुके थे। लगता है कि अब तू पूरी तरह बेदार हो चुका है। मैं उसकी तरफ देख कर बोली। हाँ आतून, अब मेरे ज़हन पर नींद का बोझ नहीं, नसार ने जवाब दिया। बोल कि तूने मुझे क्यों सोते से जगाया? क्या तू भूल गया कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने उसे याद दिलाया। नहीं आतून, मैं कुछ भी नहीं बोला, मुझे सब कुछ याद है। उसने कहा, तो फिर हमें उस गार से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। रास्ता तो वो सामने ही नजर आ रहा है। नसार ने गार के दहाने की तरफ इशारा किया। हाँ ऐ मरताक, पहले मेरा भी यही ख्याल था और मैंने इसी रास्ते से बूढ़े साहर ज़ईम और उसके खिदमतगारों को आते और जाते हुए देखा था, मगर यह कहकर मैंने नसार को बता दिया कि जब साहर ज़ईम चला गया तो मुझे गार के बाहर क्या नजर आया। गहरी खाई, नसार हैरत ज़दा सी आवाज में कहने लगा। मगर आतून, ये किस तरह हो सकता है? गार के बाहर अगर वाकई गहरी खाई है तो फिर वह बूढ़ा साहर
और उसके खिदमतगार किस तरह उधर से आए थे और फिर बकौल तेरे उसी रास्ते से वापस चले गए। मत भूल कि उसके लिए क्या मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं। हमें इस बहस से कतई नजर इससे नबर्द आजमा होना है। और सुन कि जब तू सो रहा था मुझ पर क्या गुजरी। ये कहकर मैंने कुछ देर पहले पेश आने वाले वाक़े से नसार को आगाह कर दिया और आखिरकार उसमें से मैंने कहा कि जब वो धुएं में गायब हो रहा था तो मुझे सरासीमा सा लग रहा था। हम उस मौका से फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर तू ए अतून क्या चाहती है? नसार के लहजे से खौफ का इज़हार हो रहा था। सोच के जिस तरह मेरी आंखों से निकलने वाली तेज रोशनी ने एक खौफनाक मखलूक को जलाकर खाक कर दिया था, क्या उसी तरह उस बूढ़े सहार को जिंदा जला देना मुमकिन नहीं? मेरा तो ख्याल है कि वो उसी खौफ से छुप गया है। हमें उस गाड़ से निकलकर उसे तलाश करना चाहिए। शायद इस वक्त मेरे अंदर मौजूद पुरअसरार कुव्वतें बेदार हैं और ये कुव्वतें कब दोबारा मेरे अंदर सो जाएं, क्या खबर। मैं इसलिए इस मौका से फायदा उठाने को कह रही हूँ, मैं बोली। लेकिन तेरा ही कहना यह भी है कि गार के बाहर खाई है, नसार ने कहा। और फिर हम किस तरह यहाँ से निकल सकते हैं? अगर हमारा इस गार से निकलना इतना ही आसान होता ए अतून, तो वो बूढ़ा सहार हमें यूं यहाँ आजाद ना छोड़ देता। और फिर नसार भी मेरी तकलीद में खड़ा हो गया और फिर मेरे साथ साथ गार के दहाने की तरफ बढ़ा। गार के दहाने से बाहर आते ही मैं उछल पड़ी। अब वहां मुझे कोई खाई नजर नहीं आ रही थी और मेरे लिए ये अमर हैरत अंगेज ही था। वो शायद मेरा फरेबे नजर होगा, मैं बड़बड़ाई। और किसी सहर के लिए किसी को फरेबे नजर में मुब्तला कर देना दुश्वार नहीं होता। नसार मेरे करीब ही था और उसने भी गालबन मेरी बड़बड़ाहट सुन ली। उसने मेरे ख्याल की तायद की, हाँ यही हो सकता है आतून। और इस वक्त हम या तो उसके लिए फरेबे नजर का शिकार नहीं हुए कि हमारी पुरअसरार कुव्वतें बेदार हैं, और उसका सबूत ये है कि हम अंधेरे में देखने के अहल भी हैं। बूढ़ा सहार यकीनन मुतमिन होगा कि हम बाहर खाई देकर यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, मैंने कहा। फिर मैं नसार को साथ लिए बाएं जन मुड़ी और आगे बढ़ती चली गई। मैंने नसार को अपने गिर्द खींचे हुए नादीदा हिसार के बारे में भी आगाह कर दिया और उससे कह दिया कि मुझसे दूर ही दूर रहे। मगर नादानस्तगी में वो साथ साथ चलते हुए मेरे करीब आ गया और मुझे ये देखकर तअज्जुब हुआ कि उस नादीदा हिसार ने नसार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और मैं दानिस्ता उसके कुछ और करीब होकर चलने लगी कि देखूं इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैंने उसका हाथ भी हिम्मत करके पकड़ ही लिया। नसार ने चौंक कर अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया और खौफजदा सी आवाज में बोला, वो आतून, हिसार तेरे गिर्द तो हिसार कायम है, लेकिन उस हिसार से तुझे कोई जरर नहीं पहुंचा। मैंने कहा, शायद इसी की वजह ये हो कि खुद तेरे वजूद में भी पुरअसरार कुव्वतें ख्वाब बीदा हैं।